Hello CLAT aspirants, I am Barkha, your faculty and mentor at iConta, and I received a numerous number of messages where the students were asking me, ma'am, what were the important legal maxims that we need to study for our CLAT exam for 2025. So what I planned for you in this video is that we are going to study the most important legal maxims that you must know for your CLAT exam. So let's begin. The first one is the very basic ab initio, which means that from the very beginning. This means that something is valid or applicable from the very start or the beginning. That means, let us take an example. As we say, void ab initio. You must have studied this term in your Contract Act, right? So what does void mean? Void means null, which is not valid. And what does ab initio means? Ab initio means that from the very starting. That means any contract which is not valid or which is null from the very starting. So the word ab initio means from the very start it has no value, which is called as void ab initio. The second one is actionable per se. The very act is punishable and no proof of damage is required. The actionable per se term means that that particular act is punishable and no proof, that means no evidence is required कि उससे आपका कोई डैमेज हुआ है, तो वो डैमेज आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो एक्ट अपने आप में ही पनिशेबल हो जाएगा. This refers to an action or behavior that is inherently wrong or punishable without needing to prove any specific harm or damage caused. आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई डैमेज हुआ है या आपकी कोई भी इंजरी हुई है, वो एक्शनेबल अपने आप में है, वो एक्शन जो है, वो जो एक्ट है, वो अपने आप में पनिशेबल है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्शनेबल पर से. द थर्ड वन इज ectori incumbit onus probandi. The burden of proof is on the plaintiff. That is, they are saying कि if a plaintiff is filing a case in the court, then that means उसी प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन होगा प्रूव करने का कि इन अ लीगल केस द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एविडेंस एंड प्रूव देयर केस लाइज विद द पर्सन हु इनिशिएट्स द लॉ सूट, दैट इज द प्लेंटिफ. सो दे आर सेइंग दैट अगर प्लेंटिफ कोई केस फाइल कर रहा है तो उसी के ऊपर बर्डन है दैट ही हैज टू गिव द एविडेंस एंड ही हैज टू प्रूव इट्स केस, right? So that is what is called as actori incumbit onus probandi. The fourth one is actus reus non facit reum nisi mens sit rea. ये बहुत कॉमन लीगल मैक्सिम है जो आपने सुना भी होगा. Conviction of a crime requires proof of a criminal act and intent. That means they are saying कि intention, that means your guilty mind as well as your guilty act are both required to fulfill the essential elements of crime. To be found guilty of a crime, it is necessary to prove both that a wrongful act was committed, that means actus reus. Actus reus से you can understand that they are talking about the guilty act, that is the wrongful act, and that was there was a criminal intention or a guilty mind, that is the mens rea. From mens word you can understand the word mind. That is the guilty mind and the guilty act both are necessary to form a crime, right? The fifth one is alibi at another place elsewhere. Alibi is generally used as a defense. Supposedly अगर किसी को charge किया गया किसी offense के लिए, right? If A was charged for murdering B, right? But and let's suppose that B was murdered in Delhi. So here A can take a defense of alibi by proving that on the day of murder he was not there in Delhi, he was there in Mumbai.
and if he can prove so, that means his defense of alibi has been proven. The claim or evidence that someone was in a different location at that time a crime was committed, providing them with an alibi or an alternative explanation. That is what they are saying कि अगर आप क्राइम की लोकेशन के अलावा प्रूफ कर देते हो कि आप उस दिन क्राइम जहां पर हुआ वहां पर नहीं थे और आप कहीं और थे, that is a defense of alibi. Moving further, the sixth one is essentio mentium, the meeting of minds mutual essence. Explanation: when two or more parties have a shared understanding or agreement on a particular matter. आपने इसी से रिलेटेड एक और लीगल मैक्सिम सुना होगा, विच इज कंसेंसस एड ईडम. दैट मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड्स. अगर दो पार्टीज एक ही सब्जेक्ट मैटर पे अग्री कर जाती हैं टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम मैटर, सेम सब्जेक्ट मैटर, देन दैट इज कॉल्ड एज एसेंशियो मेंटियम और कंसेंसस एड ईडम. द मीटिंग ऑफ माइंड्स म्यूचुअल एसेंस. दैट मीन्स दे आर बोथ टॉकिंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. फॉर एग्जाम्पल, if A and B are entering into a contract to buy a horse, right? A is selling the horse to B, right? But A has two horses. One is black, other one is white, right? But A is willing to sell the black horse and B is also willing to buy the black horse itself. So that means they have met their minds and they are agreeing on the same subject matter in the same thing. So that is why we say that if supposedly A wants to sell the black horse and B wants to buy the white horse, that means there is no consensus ad idem, there is no essentio mentium. That means they are not agreeing on the same subject matter. The next one is audi alteram partem. No man shall be condemned unheard. मतलब आप बिना किसी को सुने, अगर आप उसका डिफेंस नहीं सुन रहे हो, आप उसको पनिश नहीं कर सकते. आपको दोनों साइड्स ऑफ स्टोरी सुननी पड़ती है. आपको उस पर्टिकुलर इंसान का भी कंटेंशन सुनना होगा. The principle that everyone has the right to present their side of the story and be heard before any judgment or condemnation is passed. That means अगर कोई भी जजमेंट पास होता है तो आपको एक पर्टिकुलर पर्सन का साइड ऑफ स्टोरी भी सुनना होगा. आप उसको बिना सुने कंडेम नहीं कर सकते या उसको पनिश नहीं कर सकते. The eighth one is bona fide, yet a very simple legal maxim in good faith. Any action which is done in a very good faith or with utmost trust, it is called as bona fide. Acting or behaving sincerely, honestly and without deceit or any ill intention. If any act is done without any intention of deceiving the other person, deceiving means cheating the other person, or with any ill intention, without any ill intention, if you are doing any act, that means that act is a bona fide act. The ninth one is bona vacantia, goods without an owner. This term also you must have read in the Contract Act, where you study the contracts of bailment and bailee. That means any goods without an owner refers to unclaimed property or assets that have no rightful owner. Any such acts or any such goods which do not have an owner, which claim that any owner cannot be defined in that particular goods, for that we use the term bona vacantia. See, I'll tell you a trick to remember the legal maxims. The word is vacantia. आपको vacantia पढ़ते ही क्या वर्ड याद आता है इंग्लिश का? Vacant. Vacant वर्ड याद आता है. और vacant का क्या मतलब होता है? खाली. That means nobody is there. तो ऐसे goods जिनका कोई नहीं होता, they are vacant. That means goods without an owner is, that is how you can remember the term bona vacantia. The 10th one is caveat emptor. Let the buyer beware. The principle that places the responsibility on the buyer to be cautious and diligent while making a purchase, as they are responsible for evaluating the quality and suitability of the goods or services. वो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी बायर है, कोई भी परचेजर है, तो उसको
क्या होना चाहिए, बिवेयर होना चाहिए कि वो क्या गुड्स खरीद रहा है. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इवैल्यूएट करे कि व्हाट इज ही बाइंग एंड इज दैट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस and due care must be followed by that purchaser so that he does not get involved into any such act कि उसको कोई गलत प्रोडक्ट खरीदना पड़े या उसको बाद में कोई भी consequences face करने पड़े. That is what is called as caveat emptor, that the person who is buying anything should be beware of his responsibilities and he must do proper due diligence before buying any product. Moving further, the 11th one is caveat venditor. Let the seller beware. अब वो क्या बोल रहे हैं, पहले वो बायर का बता रहे थे कि बायर should be beware, अब वो बता रहे हैं कि seller must also be beware. About what? The principle that places the responsibility on the seller to be cautious and honest while selling a product. अगर बायर beware हो रहा है, अगर बायर is doing a act with proper due diligence, then एक seller की भी equal responsibility बनती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते वक्त प्रॉपर कॉशन के साथ उन प्रोडक्ट्स को बेचे, एज दे मे बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनी डिफेक्ट्स और मिस रिप्रेजेंटेशंस. क्योंकि अगर एक सेलर ने ठीक प्रोडक्ट नहीं बेचा तो उनको डिफेक्ट्स के लिए और मिस रिप्रेजेंटेशंस के लिए बाद में कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज कॉर्पस. Corpus simply means the body. You must have heard about the term like habeas corpus. That means refers to the physical body of a person often used in legal context such as habeas corpus. मतलब legal terms में हम body को word इस्तेमाल करते हैं corpus. Physical body किसी भी इंसान की अगर हम legal terms में बोलेंगे तो उस word को हम इस्तेमाल करेंगे as corpus. और habeas corpus का क्या मतलब होता है? The right to challenge unlawful detention. हीबस कॉर्पस का यूजुअल मीनिंग होता है प्रेजेंट द बॉडी, यानी कि आप किसी को अनलॉफुली डिटेन नहीं कर सकते. You have to present the body. That is what is called as habeas corpus. और corpus का मतलब होता है the physical body of a person. 13th one is damnum sine injuria. Damage without injury refers to a situation where harm or damage occurs without any legal injury, meaning that there is no violation of a legal right. वो क्या बोल रहे हैं, damnum sine injuria एक ऐसा इंसिडेंट जहां पे आपको इंजरी तो हुई है, आपका डैमेज तो हुआ है, बट आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ. एट दैट टाइम दे यूज दैट इंसिडेंट फॉर अ टर्म damnum sine injuria. मतलब आपको इंजरी हुई, आपको डैमेज हुआ, बट आपका कोई लीगल राइट डैमेज नहीं हुआ. 14th one is de facto. That means in fact. Anything that is related to a particular fact in law is called as de facto. Describes a situation that exists or it is true in practice even if it may not be legally recognized or formally established. Fact हम किसको बोलते हैं? जो सच होता है, that we say that this is a fact. Fact means that is true. So they are saying describes a situation that exists or is true in practice. जो एक कोई ऐसी situation जो कि सच है but जरूरी नहीं है कि वो legally रिकॉग्नाइज्ड हो या फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड हो. हम जितने भी फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्या वो हर कोई लीगली रिकॉग्नाइज्ड होता है? नहीं, वो एक सिर्फ एक ट्रू होता है और एक वो सिर्फ एक नॉर्मल डे टू डे प्रैक्टिस होती है जिसको भी हम स्टेट करते हैं. तो दैट मीन्स डी फैक्टो इज समथिंग विच वी आर स्टेटिंग एज अ ट्रू फैक्ट, राइट. द नेक्स्ट वन इज डिजोर. दैट मीन्स बाय लॉ. जैसे हमने डी फैक्टो पढ़ा था वैसे ही डी जॉर है. दैट मीन्स बाय लॉ समथिंग दैट इज रिकॉग्नाइज्ड और एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. जिसको लॉ में रिकॉग्निशन मिल जाए, जो एस्टैब्लिश हो जाए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ और डी जॉर. दैट मीन्स इट हैज बीन फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. और आप इसके न्यूमरस एग्जांपल्स ले सकते हो. हमारे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई भी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन उठा लो जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय law, so that it is called as this is a de jure provision, right. Moving further, the next one is de minimis. About minimal things. अब देखो फिर से मिनिमस. मिनिमस से आपको क्या याद आता है? इंग्लिश का वर्ड
मिनिमम, राइट। तो डी मिनिमस में क्या बोल रहे हैं, रेफर्स टू मैटर्स और इश्यूज दैट आर सो insignificant or minimal that they are not considered worthy of attention or legal actions। ऐसे actions जो वर्दी नहीं है कि आप उनको कोर्ट में ले जाकर उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन करवाओ। सपोजिटली ए एंड बी आर फ्रेंड्स, राइट। ए ने बी को अपना पेन दिया और बी ने उसको रिटर्न नहीं किया, क्या आप उस मैटर के लिए कोर्ट जाओगे? नो, राइट। सो ऐसे एक्शंस जो लॉ में बहुत ट्राइवल हैं, जिनको आप कोर्ट नहीं लेके जाना चाहते, या इवन वो लीगल एक्शन के लिए अटेंशन भी अपनी तरफ गेन नहीं करते, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डी मिनिमस। अब आपका फ्रेंड आपसे कोई भी पेन ले लेता है या आपसे कुछ भी ले लेता है, तो क्या आप उसके लिए कोर्ट जाते हो अगर वो आपको रिटर्न ना करे? तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डी मिनिमस। मूविंग फर्दर, ये इसी का एक एक्सटेंशन है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। द लॉ डज नॉट गवर्न ट्राइफल्स और इग्नोर्स इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स। क्या बोल रहे हैं कि जो लॉ है वो ट्राइफल मैटर्स को नहीं डील करता है। इट इज अ लीगल प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद माइनर और ट्राइवल मैटर्स। लॉ में आप ट्रिवियल मैटर्स को लेके कोर्ट नहीं पहुंचोगे, बिकॉज कोर्ट ऑलरेडी ओवरबर्डन है विद द मैटर्स विच आर हाईली इंपॉर्टेंट टू बी सीन बाय द कोर्ट्स। तो आप ये छोटे छोटे मैटर्स लेके कोर्ट नहीं पहुंच सकते। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। नेक्स्ट वन इज डी नोवो, टू मेक समथिंग अ न्यू, रेफर्स टू अ स्टार्टिंग अफ्रेश और फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब कोई भी चीज जो आप एक नई शुरू कर रहे हो, एक फ्रेश शुरू कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज डी नोवो, रेफर्स टू स्टार्टिंग अफ्रेश और फ्रॉम द बिगिनिंग। आप स्टार्ट से कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डी नोवो। द सेकेंड वन इज डोली इन कैपिक्स। देखो, ये जब मैंने पढ़ा था ना, तो मुझे मेरी टीचर ने इतने अच्छे तरीके से याद कराया था। डॉली, डॉली से क्या वर्ड याद आ रहा है आपको? डॉल, राइट। एंड इन कैपेक्स से क्या वर्ड याद आएगा? इनकेपेबल, राइट। बट डॉल इनकेपेबल, क्या कोई डॉल को स्यू कर सकता है क्या लॉ में? नहीं ना। बट डॉल से यहां पे वो क्या सिग्निफाई करना चाह रहे हैं? डॉल से कौन खेलता है? स्मॉल चिल्ड्रन, राइट। सो दे आर सेइंग इनकेपेबल ऑफ क्राइम, ऐसे चिल्ड्रन जो क्राइम कर देते हैं बट उनको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते कि वो क्या कर रहे हैं। रेफर्स टू अ प्रिजम्पशन दैट अ पर्सन बिलो अ सर्टेन एज, यूजुअली अ चाइल्ड, इट इज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम ड्यू टू द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और क्रिमिनल इंटेंट। वो बच्चे जानबूझ के कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों से बिना उस एक्ट के नेचर या कॉन्सिक्वेंस को बिना रियलाइज किए उनसे वो एक्ट हो जाता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कि उनके अंदर क्राइम करने की कैपेबिलिटी नहीं है, दे आर जस्ट डूइंग इट, जस्ट यूजुअली उनसे वो क्राइम हो गया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डोली इन कैपेक्स। The next one is detinue, the tort of wrongfully holding goods that belong to someone else, refers to the wrongful act of retaining or refusing to return someone else's property or goods। मतलब किसी ने आपके goods ले लिए, ठीक है, लेकिन उसको पता है कि वो गुड्स उसके नहीं है, फिर भी वो या तो उसको अपने पास रख रहा है या रिफ्यूज कर रहा है आपको वापस देने के लिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेटिन्यू। मतलब आपके पास किसी और के गुड्स हैं, किसी और का सामान है, बट फिर भी आप उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखे हुए हो और आप उसको रिटर्न करने के लिए मना कर रहे हो, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, estoppel, prevented from denying, a legal doctrine that prevents a person from denying or contradicting a previous statement or position that they have said। that means कि अगर आपको किसी ने कोई एक स्टेटमेंट बोली, ठीक है, तो बाद में वो स्टेटमेंट से नहीं मुकर कर सकता, that is what is called as estoppel। मतलब उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल लग गया कि अगर किसी ने मेरे को कोई चीज बोली और उसके उस स्टेटमेंट बोलने की वजह से मैंने कोई ऐसा एक्ट किया, तो वो उस स्टेटमेंट से नहीं बदल सकता। दैट मीन्स ए एंड बी आर टू पीपल, ठीक है। ए ने बोला वी नीड डोनेशन बिकॉज वी आर मेकिंग अ टेम्पल
in the locality, and for that temple we need a donation of whatever rupees, right? For rupees supposedly 10,000. But बाद में पता चला कि वो कोई टेम्पल के लिए पैसे नहीं मांग रहा था, he was doing certain illegal act और उसने B से 10,000 रुपए ले भी लिए थे. But here what will happen is, here he will be, he will be stopped by the principle of estoppel. That means अगर उसने ऐसी स्टेटमेंट दे के कि वो एक टेम्पल बिल्ड कर रहे हैं, अगर बी से उसने 10,000 रुपए ले लिया है, दैट मीन्स कि बी ने उसकी स्टेटमेंट सुन के कोई ऐसा एक्ट कर दिया है, तो ए को प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल गवर्न करेगा, वो अपनी बात से नहीं मुकर सकता. और अगर इन केस ऐसा होता है तो बी विल बी refunded with his rupees 10,000 plus damages that he may have incurred. The next one is ex parte, proceedings in the absence of the other party. क्या बोल रहे हैं कि अगर एक पार्टी continuous notices पे भी कोर्ट में नहीं आ रही है तो उसके बिना legal proceedings होंगे. That means उसके against एक ex parte order दिया जाएगा, because after despite notices he is not appearing in the court. तो इसीलिए उस पार्टी को ex parte डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फिर भी उसके बिना उसकी कंटेंशन सुने लीगल प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होंगे. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्स पार्टे ऑर्डर और डिक्लेयरिंग अ पार्टी टू बी एक्स पार्टे. द नेक्स्ट वन इज फैटम, बियॉन्ड ह्यूमन फॉरसाइट. क्या बोल रहे हैं, कोई ऐसी एक्शन या कोई भी ऐसी सिचुएशंस जिसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं सोच सकता, दैट इज कॉल्ड एज फैटम. समथिंग दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन प्रेडिक्शन और एंटिसिपेशन, ऑफन रेफरिंग टू अनफोर्सीन और अनकंट्रोलेबल इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस. कोई ऐसी चीज जिसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोच ही ना सके कि ऐसा भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज फैटम. और इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है कोविड-19, जो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई डिसीज इतनी तेजी से रेप्लिकेट हो सकती है लोगों में, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फैटम, राइट. मूविंग फर्दर, विच इज कॉल्ड एज फैक्टम प्रोबेंस, अ रेलिवेंट फैक्ट. ये टर्म हमारा यूजुअली एविडेंस एक्ट में यूज होता है. अ फैक्ट और एविडेंस दैट इज सिग्निफिकेंट और रेलिवेंट इन एस्टैब्लिशिंग अ क्लेम और प्रूविंग अ केस. कोई भी ऐसा फैक्ट जो जरूरी होता है ये प्रूव करने के लिए कि उस केस में वो चीज हुई थी या नहीं हुई थी. फॉर एग्जाम्पल, ए इज चार्ज ऑफ किलिंग बी. ठीक है, ठीक है, ए इज चार्ज ऑफ किलिंग बी. अब कौन सा फैक्ट फैक्टम प्रोबेंस माना जाएगा, यानी कि रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, वो ये होगा कि क्या ए को लास्ट टाइम बी के साथ देखा गया था, क्या ए के हाथ में कोई भी ऐसा वेपन था जिससे बी की डेथ हो सके. तो वो सारे फैक्ट्स जो ये प्रूव कर सके कि क्या ए ने बी को मारा है, दैट विल बी कॉल्ड एज फैक्टम प्रोबेंस, right. Moving further, fros est celere fraudum, that means it is fraud to conceal a fraud. मतलब इसका सिंपलेस्ट मतलब ये है कि अगर आपको पता चल जाता है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ फ्रॉड किया है और आप उस फ्रॉड को छुपा रहे हो, तो वो अपने आप में एक फ्रॉड है. यानी कि it is fraud to conceal a fraud refers to the principle that intentionally concealing or hiding fraudulent activities is itself considered a fraudulent act. आप किसी भी गलत काम को या आप किसी भी फ्रॉड को छुपा रहे हो तो आप खुद भी फ्रॉड कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाट दिस टर्म मींस. द नेक्स्ट वन इज इग्नोशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसिट. इग्नोरेंस ऑफ द लॉ एक्सक्यूजेस नो वन. वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एक कंट्री में रह रहे हो, देन यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो द लॉ ऑफ द लैंड. द प्रिंसिपल दैट नॉट नोइंग और बीइंग अनअवेयर ऑफ अ लॉ डज नॉट एब्सॉल्व एन इंडिविजुअल फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी फॉर वायलेटिंग दैट लॉ. सपोजिटली, जैसे कि अगर कोई भी एक पर्सन ड्रग्स या स्मगलिंग के लिए चार्ज किया जाता है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं पता था कि इंडिया में स्मगलिंग इलीगल है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आप एक कंट्री के रेजिडेंट सिटीजन हो तो आपको उस कंट्री का लॉ पूरी तरह पता होना चाहिए, एंड यू कैन नॉट यूज इट एट डिफेंस कि मुझे लॉ नहीं पता था, राइट.
द नेक्स्ट वन इज इंजूरिया साइन डैमनो, जो अभी हमने लास्ट पढ़ी थी, डैमनम साइन इंजूरिया, उसी का ये ऑपोजिट है इंजूरिया साइन डेमनो, इंजरी विदाउट डैमेज, रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट और इंटरेस्ट विदाउट एनी एक्चुअल और सिग्निफिकेंट हार्म और डैमेज। वो क्या बोल रहे हैं कि यहां पर आपका लीगल राइट डैमेज हो रहा है, यहां पे आपको एक्चुअल कोई इंजरी नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए, वो वोट देने जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो पोलिंग बूथ पे पहुंचा तो वहां पे उसको वोट देने नहीं दिया, ठीक है, तो यहां पे उसका कौन सा राइट इंजर हुआ, यहां पे उसका राइट टू वोट इंजर हुआ, ठीक है, तो उसका लीगल इंजरी तो हो रही है, बट क्या उसको एक्चुअल में कोई इंजरी हुई है, यानी कि उसको कोई डैमेज हुआ है? नहीं। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंजूरिया साइन डेमनो, जब आपका कोई लीगल राइट हैम्पर हो बट आपको कोई एक्चुअली इंजरी ना हो। द नेक्स्ट वन इज इम्प्रॉम्प्टू, ये तो हम इन जनरल भी यूज कर लेते हैं। इन रेडीनेस, ऑन द सेम टाइम, रेफर्स टू बीइंग प्रिपेयर्ड और रेडी फॉर समथिंग, आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा रेडी होते हो, इम्प्रॉम्प्टू अगर आप उस एक्शन को करो रेडी होके, तो दैट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉम्प्टू। The next one is in personam, a legal proceeding directed against a specific individual, एक particular individual के against अगर कोई legal proceeding हो रही है तो उसको हम बोलते हैं the proceeding in personam, refers to a legal action or proceeding that is targeted or directed specifically against a particular individuals to establish personal right or obligation, जहां पे एक particular person की liability बनती है, जहां पर एक particular person liable होता है उस act के लिए, तो वहां पर हम बोलते हैं in personam, एक legal action towards a particular person is called as in personam. The next one is urinendo, स्पोकन वर्ड्स दैट आर डेफोमेटरी बिकॉज दे हैव अ डबल मीनिंग। अगर आप किसी भी इंसान के लिए डेफोमेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो जिसका डबल मीनिंग निकले, उसको हम यूरिनेंडो कहते हैं। रेफर्स टू अ स्टेटमेंट और रिमार्क दैट इंप्लाइज अ डेफोमेटरी मीनिंग और इंटेंशन थ्रू इनडायरेक्ट और वेल्ड लैंग्वेज। आप ऐसी लैंग्वेज और ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि डेफोमेटरी है और जिनका डबल मीनिंग है, मतलब आप एक कहते हैं ना ताना मारना, लेकिन वो एक बहुत एब्रप्ट ताना मारना, दैट इज कॉल्ड एज यूनिएंडो, ठीक है। तो दिस वॉज योर पार्ट 1 ऑफ द इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स फॉर योर क्लैट 2025, and what we are going to do is, if you want part 2 for that, just comment down below part 2 and I'll be back with the part 2 of this legal maxims that are very important for your CLAT exam 2025. Here I'm signing off and I'll see you in the next video. Bye.